Today I'll start with gravitation. और रिजल्ट कब आ रहा है? पता नहीं, वो भी देख सकते हैं। एंड शौर्य, व्हाट अबाउट यू? मार्क्स नहीं पता लगे फिजिक्स के? फिजिक्स के मार्क्स नहीं पता लगे? फिजिक्स से मार्क्स पता लगे? अच्छा. So first let's discuss Newton's law of gravitation. If you have 2 point masses m1 and m2 separated by distance r, these are 2 point masses, so they will attract each other by gravitational force of attraction. And the magnitude of this force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of the distance. So if we have 2 point masses separated by distance r, then the force, gravitational force of attraction between them is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of the distance. And if we club these two, then magnitude of force is proportional to m1 m2 by r square. So gravitational force is proportional to m1 m2 by r squared. And if you remove the sign of proportionality, it is a constant g called universal constant of gravitation. और सबमिट मार्क्स मिल गए? मंडे पेपर मिला? अच्छा. So g is constant of gravitation and its value is 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन. यूनिट यहां से आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. And g is called universal constant of gravitation. Why it's universal constant of gravitation? Because its value is the same everywhere in the universe. That is why universal constant of gravitation. ठीक है. लिख लो तुम भी. अब यूनिवर्सल कांस्टेंट को ऐसा करो, तुम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना जरा. न्यूटन को डाइन में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू सीजीएस में क्या आएगी.
कन्वर्ट यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इनटू सीजीएस यूनिट। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁵ आएगा। 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। 1 मीटर इज 10⁵2 सेंटीमीटर एंड 1 kg इज 10⁵3 ग्राम। करो कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू सीजीएस। और आपकी आवाज नहीं आ रही। If I take m1 m2 equal to 1 kg, r is equal to 1 meter, then f would be equal to g, है ना। इस फॉर्मूले में m1 m2 को 1 kg डाल दो, r को 1 मीटर डाल दो, f would be g। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे? कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 पॉइंट masses is equal to the force experienced by 2 point masses each equal to 1 kg when separated by distance of 1 meter। लिखो, एक बार ये लिख लो फिर डेफिनेशन लिखो उसकी। लिख लिया? लिखो, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू फोर्स
equal to the force experienced by equal to the force experienced by two point masses, each equal to 1 kg, each equal to 1 kg, separated by separated by a distance of separated by a distance of 1 meter. ठीक है. So this is Newton's law of gravitation. There are few finer points about gravitational force. वो भी लिख लेते हैं. The first thing is that gravitational force is a fundamental force of nature. Gravitational force is a fundamental force of nature. Second point about this force is it obeys inverse square law. It obeys inverse square law. एक तो fundamental force है. Second thing is it obeys inverse square law. That is, force is proportional to 1 by r square. It obeys inverse square law. That is, it is proportional to the square of the distance between the two. It is attractive in nature, attractive only. अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है. मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है. बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर. और बताओ. नेक्स्ट लिखो. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट मासेस. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the medium between the 2 point masses. अगर 2 point masses के बीच में वाटर है, एयर है, स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ भी है, फोर्स हमेशा सेम रहेगा. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. सो यू कैन से दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसा नहीं है. और कुछ सोचो अपने आप से. एनी अदर प्रॉपर्टी, any other characteristics you can think of. It is a central force. It is central force. I'll explain you what is central force. In fact, magnetic force is also central force. Electrostatic force is also central force. ये सारे के सारे central force होते हैं. एक force होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो वो भी फंडामेंटल फोर्स है, वो नॉन सेंट्रल होता है. सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि सपोज यू हैव 2 point masses m1 m2. तो ये मास इसको अटैक करेगा, तो फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन. ये वाला मास इसको अटैक करेगा अपनी तरफ, एफ ऑन वन बिकॉज ऑफ टू. सो द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 point masses. इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है. क्या हुआ सब में? तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? क्या हो गया? अच्छा. और लास्ट क्लास में तुम नहीं आए थे, क्या हुआ? क्या? अच्छा.
तो इसे सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन। लिख लो सेंट्रल फोर्स का मतलब। सेंट्रल फोर्स मींस सेंट्रल फोर्स मींस it always be acting it always be acting along it always be acting along the line joining the 2 point masses along the line joining the 2 point masses। ये होता है। अब न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, बेसिकली जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन पे एक्ट करता है। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन इन सब के बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। लेकिन वो नॉन सेंट्रल होता है, मतलब अगर एक फोर्स इधर है दूसरा फोर्स ऐसे हो सकता है। मतलब फोर्स में नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 point पार्टिकल्स, दैट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। लिख लो, न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। तो ये सारी खासियतें। एक और खासियत थी जो तुमने पढ़ी है वर्क पावर एनर्जी में, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स पता है ना क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। चाहो तो लिख लो दोबारा से। वर्क डन by a non-conservative force depends only upon the initial and final position. Work done by conservative force depends only on initial and final position, but not on the path taken. But not on the path taken. ये है conservative force का खासियत, which we have done earlier. अब हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। इनफैक्ट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका एक पॉइंट और लिख लो, इसे वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स एंड in fact nuclear force is the strongest force. Nuclear force is the strongest force. ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होता है, न्यूक्लियस फोर्स वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है? जो मालूम है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। प्रोटॉन और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस स्टेबल होता है किसी भी एटम का, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि उनको होल्ड करके रखेगा। अदरवाइज दे विल पॉप आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस लाइक पॉपकॉर्न, नहीं? तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स। फिर भी हम देखते हैं कि इट इज क्वाइट प्रेवलेंट, पेन है, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा नीचे ही गिर जाएगा। एवरीथिंग फॉल्स ऑन द अर्थ। उसका रीजन ये कि बिकॉज द मासेस इन द यूनिवर्स आर ह्यूज,
दैट इज वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, सन इज अट्रैक्टिंग द अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन कितना होता है, पढ़ा होगा तुमने, 1 astronomical unit, 1 AU। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1 AU। तो अगर अर्थ सन को अटैक कर रहा है ना, फोर्स ऑन द सन बाय अर्थ, एंड दिस इज द फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सन। तो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मास ऑफ द सन तो बहुत ज्यादा होता है अर्थ के कंपैरिजन में, मास ऑफ द सन इज ह्यूज। तो कौन फोर्स ज्यादा लगाएगा, अर्थ या सन? हाँ, देख लो, ये एमएस है, ये एमई है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन। पहले फोर्स निकालो, दोनों का फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स ऑन सन बाय द अर्थ, फोर्स ऑन द सन बाय द अर्थ क्या होगा फॉर्मूले से, जी एम एस एम ई बाय डिस्टेंस स्क्वायर्ड, ये हुआ। अब निकालो फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सन, वो निकालो, क्या आएगा वो? वो कितना आएगा? तो कौन सा बड़ा लग रहा है तुम्हें, विच इज ग्रेटर? दोनों इक्वल है, बोथ द फोर्स है इक्वल, ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर दोनों इक्वल हैं तो वाई, हाउ कम अर्थ इज अट्रैक्टेड, अर्थ विल मूव, अगर अर्थ स्टॉप कर दे मूव करना, रोटेट करना, अर्थ विल फॉल इनटू द सन, बिकॉज एक्सेलरेशन अर्थ का बहुत ज्यादा होगा। जब तुम एक्सेलरेशन निकालोगे ना तब फर्क पड़ेगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ निकालना है, मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑन अर्थ बाय द सन डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सन निकालना होगा तो फोर्स ऑन सन बाय द अर्थ बाय मास ऑफ द सन। तो मास ऑफ सन तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ सन बहुत कम होगा कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ और सन एक बाइनरी सिस्टम है। अगर ये दोनों, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा सन में, तो सन में जंप कर जाएगा। यूनिवर्स में एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग विल एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ इट रोटेट्स अराउंड द हेवियर बॉडी। अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि यूनिवर्स में कोई भी सिंगली एग्जिस्ट करे। If a body does not rotate around a heavier body, it will jump into it, it will fall into it। ये होता है, इसीलिए यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे हैवियर ऑब्जेक्ट के बाद रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू will provide required centripetal force to rotate। तो हर ऑब्जेक्ट को अगर सिंगली एग्जिस्ट करना है यूनिवर्स में, इट हैज टू रोटेट अबाउट द हेवियर ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट वोंट एग्जिस्ट। अगर मून अर्थ के अराउंड रोटेट करना बंद कर देगा तो मून विल जंप इनटू द अर्थ। तो मून हैज टू रोटेट अराउंड द अर्थ, अदरवाइज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट विल हिट द अर्थ, देयर बी नो लाइफ देन। तो इससे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज 3 मासेस हैं जो कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, तीनों इक्वल हैं, ट्रायंगल का साइड ए है, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल पुल
ए, इस ए पे अगर मैं फोर्स देखूं तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी होगा, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी भी होगा, है ना। तो हर मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट दिस सिस्टम रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास से ओ, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। तो उस जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो निकालना है, उसकी एंगुलर स्पीड भी निकालनी है। कर लो, इन टर्म्स ऑफ ए में नहीं आएगा आंसर। क्वेश्चन भी लिख लो। as shown in the diagram as shown in the diagram, 3 point masses, 3 point masses each equal to m, 3 point masses each equal to m are placed on the vertices of are placed on the vertices of an equilateral triangle, on the vertices of equilateral triangle of side A, of side A, small a. The system is rotating. The system is rotating due to centripetal force, due to centripetal force provided by their provided by their mutual gravitational force of attraction, provided by their mutual force of gravitation. Find the speed of rotation and angular speed. कर लो। एक मास में फोर्स निकालो, नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। यू फाइंड द फोर्स ऑन मास ए, नेट फोर्स निकालो, वो टुवर्ड सेंटर ऑफ ट्रायंगल होगा। कर लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये।
दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लो। फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? जी एम इंटू एम बाय ए स्क्वायर, एंड द सेम वुड बी फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है ना? इक्विलर ट्रायंगल है ना ये। तो जब हम वेक्टर्स करे तो मैंने तुम्हें रिजल्ट्स बताए थे। अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एनी वेक्टर, फोर्स भी होता है, कुछ भी हो सकता है, और दे आर एक्टिंग एट 120, तो रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट इज ऑलवेज एफ। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट, दोबारा से लिख लो, 12th में भी काम आएगा। क्या हुआ नंदिनी? एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? कुछ आया नहीं रिप्लाई? तो मेरा फोन नहीं था मेरे पास, मम्मी पापा ने ले लिया। क्या? तो फोन ले लिया मम्मी पापा ने थोड़े टाइम के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कैसा हुआ वैसे? फिर बुरा था, टफ पेपर था बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं आपको भेज दूंगी अभी थोड़ी देर। ठीक है। तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम? सर मैं करा लाइक क्वेश्चंस किए थोड़े बहुत, बट आई डोंट नो कैसे आएंगे। डेरिवेशन वगैरह क्या आए थे? डेरिवेशन एक उसका आया था, प्रोजेक्टाइल का आया था, और वो वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आया था। ठीक है। ठीक, यही था एक और डेरिवेशन। वो ये ग्रेविटेशन में से नहीं आया, डेप्थ और हाइट वाला कुछ? हाँ उसका एक न्यूमेरिकल आया था, वो आई थिंक मैंने ठीक किया है। श्योर हम्म। देखते हैं। और लॉज ऑफ मोशन? लॉज ऑफ मोशन, सर फ्री बॉडी डायग्राम्स बिल्कुल भी नहीं आए। अच्छा। हाँ उसमें कोई एक क्वेश्चन आया था, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो उसमें मैं मतलब पता नहीं क्या करके आई हूँ, बट मैं आपको दिखा दूंगी पेपर। और बाकी लोगों का कैसे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स का? फिर बाकी सबका भी बुरा गया। हम्म। हाँ जी। सर अच्छा। सेट जो मेरा सेट था वो ज्यादा टफ था दूसरे वाले से। और मैथ्स हो गया? सर मैथ्स तो मैं दे नहीं पाई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स क्या फिजिक्स के बाद था, पहले था? पहले था। ठीक है, तो हम वही कर रहे थे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एक क्वेश्चन था कि तीन मासेस हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड ए, एंड दे आर रोटेटिंग बिकॉज ऑफ this gravitational forces, providing required centripetal force. तो मैं बता रहा था, दो फोर्स अगर, दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट एफ होता है if the angle between them is 120. Second result is if two vectors of same magnitude are there acting at 90, then the resultant is always root 2f, लिख लेना ये, and it would be acting between them. Third result, if two vectors of same magnitude are acting at 60 degree, then the resultant would be always root 3f, लिख लो. So two vectors of same magnitude acting at 120, resultant would be f only, same magnitude. Two vectors of same magnitude acting at 90, resultant is root 2 times each. And two vectors at 60 degree, resultant is root 3f. एक और रिजल्ट लिख लो, अगर तीन वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के एक्टिंग एट 120 डिग्री ईच, then the resultant would be always 0.
तो अगर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 120 पे एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो नाउ यू कैन फाइंड द रिजल्टिंग फोर्स, निकाल लो, है ना। ए पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट टू टाइम्स एफ। और फिर उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देंगे, वी आ जाएगा। उस फोर्स को निकाल के सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करो। तो अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए कितना निकलेगा? दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, तो नेट फोर्स ऑन ए विल बी रूट टू टाइम्स एफ ऑफ ए ऑन बी, और रूट टू टाइम नहीं, रूट थ्री टाइम्स एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया हमने। जब भी दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट रूट थ्री टाइम्स ईच हो जाता है। कोई बात नहीं नंदनी, इस बार तो थोड़ा ऐसा कुछ होना ही था, बिकॉज तुम्हारी तैयारी भी कहाँ हो पाई थी, तुम इधर उधर हम्म। भ्रम, है ना। हम्म। अगले की तैयारी करो अब बेटा, यूटी होंगे ना अब तो। हाँ जी, अभी टी हो गया सर। सो दिस फोर्स इज जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमें नेट फोर्स ए पे मिल गया, यही नेट फोर्स बी पे होगा, यही नेट फोर्स सी पे होगा, वो तीनों मासेस आइडेंटिकल हैं। अगर हम ये फोर्स बी पे निकालें तब भी सेम आंसर आएगा, सी पे निकालें तब भी सेम आंसर आएगा। तो तीनों मासेस आइडेंटिकल हैं, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है एक दूसरे से, तो नेट फोर्स इतना आएगा। अब ये नेट फोर्स ए पे, मास ए पे आ गया, तो ये रोटेट करेगा। तो रोटेट क्यों कर रहा है? बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ओ पे मिल जाएंगे आके, दिल मीट एट ओ। वो तो अब पॉसिबल नहीं, बिकॉज दे रोटेटिंग बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस फोर्स एफ ए प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह से ये रोटेट करेगा। तीनों मासेस एज ए सिस्टम रोटेट करेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को इक्वेट कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड वुड बी एम वी स्क्वायर बाय आर, हमने उसको एफ ओ एफ ऐसे इक्वेट कर दिया। अब प्रॉब्लम है आर को निकालो। आर को एक एटम में कैसे फाइंड करोगे? ये कर लो, ये ट्वेल्थ में भी काम आएगा। इफ यू हैव इक्विलल ट्रायंगल, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस एंगल वुड बी 30, बिकॉज पूरा एंगल 60 है, ये इसका आधा हो जाएगा। इसको तुम जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो हमेशा बाइसेक्ट भी करेगा उसको, साइड को। यहां से मेरे को आर निकाल के बताओ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। आर इक्वल टू ए कैसे आ जाएगा? हाँ ये ए है। इस राइट ट्रायंगल में यू कैन यूज कॉस। कॉस 30 करो। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यूज दैट एंड टेल मी आर इन टर्म्स ऑफ ए। ट्रायंगल में कॉस 30 यूज करो।
तो cos 30 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 होता है √3/2। a/2r, 2 से 2 कर दिया, आर की वैल्यू पता लगी a/√3। याद कर लेना, रिजल्ट बहुत कम आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है हमेशा किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में a/√3 होती है। ठीक है। और ये इसका सेंट्रॉइड भी होता है ट्रायंगल का, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल मीडियन, ये दिस इज मीडियन ऑल्सो एंड ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो एज ए रिजल्ट ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये उसका आधा हो जाएगा। ये भी याद कर लो। तो सेंट्रॉइड से साइड का डिस्टेंस होता है a/√2√3, और वो होता है a/√3। अब यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एक एम तो कट ही जाएगा। तो v² = r × √3 gm/a²। आर कितना है, आर इज a/√3। तो v आ गया हमारा gm/a द रूट, √gm/a आ गया। और एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या रिलेशन था, वो भी यूज कर सकते हैं। याद आ रहा है कुछ, v = r ओमेगा था। तो v = r ओमेगा, आर की वैल्यू डाल दो, आर इज a/√3 ना। तो ओमेगा आ गया 3gm/a⁻³ दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मासेस। जब तुम ए को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा वो a²। देखो अंडर रूट के अंदर अगर a² होता है तो बाहर आके a बन जाता है। तो जब a अंडर रूट में जाएगा a² बन जाएगा, a² × a³ हो जाएगा। तो 3gm/a³ हो गया। सो दिस वाज दिस। ठीक है। सो वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग अनदर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मास m को अर्थ की सरफेस पे रखें तो वो मास अर्थ से अट्रैक्ट होगा। सो वी कैन इजीली फाइंड दैट फोर्स and we can also find the acceleration. Now we are doing acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Capital M is mass of the earth. Small m is a mass, a point mass placed on the surface of the earth. R is radius of the earth.
और रोटेशन से क्या आता नंदनी? फिर रोटेशन से क्या आता है? तो रोटेशन से ज्यादा कुछ नहीं आता। अच्छा, मास ऑफ अर्थ याद है किसी को? 6 × 10⁻⁴ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। तो कन्वर्ट करो मीटर में, ये हो जाता है। तो फोर्स ऑन दैट मास विल बी हाउ मच? Gmm/r², है ना? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय मास। तो फोर्स है Gmm/r² डिवाइड बाय मास। मास से मास कट जाएगा। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। नाउ यू डू वन थिंग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व एंड टेल मी क्या आ रहा है ये। कर लो सॉल्व इसको। फिर 9.77 आर। हम्म। 9.77। ओके। और अगर इनफैक्ट 6.4 तो राउंडेड ऑफ वैल्यू होती है रेडियस की, 6.37 होता है, अगर वो हम वैल्यू डालें तो ये आएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. So acceleration due to gravity on the surface of the earth is either 9.81 or 9.8 meter per second square, or 981 centimeter per second square, or 32 feet per second square. So every object near the surface of earth experiences so much of acceleration. जब हमने मोशन ग्रेविटी में किया था ना, तो 9.8 लेके किया था, या फिर 10 लेके किया था. And this formula for gravity will be the same for all planets. हर planet में ग्रेविटी का फॉर्मूला यही होगा, वैल्यू अलग अलग हो जाएगी बिकॉज उसका मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा. तो Gm/r² will decide the gravity. अर्थ का mass and the radius and the distance from the sun is very suitable for
life on Earth to be possible, because gravity decides whether the particular planet would have atmosphere or not. कैसे डिसाइड होगा? Molecules of the gases will be attracted towards the Earth or the planet by the gravity. और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी स्पीड होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, √3/2 kT. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया है केमिस्ट्री में. तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ग्रेविटी, तो वो एस्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से. इसीलिए मैक्सिमम प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ग्रेविटी बहुत कम है. अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस, द राइट टेम्परेचर, राइट मास, राइट रेडियस टू हैव लाइफ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. तो ग्रेविटी की वैल्यू एटमॉस्फेयर में होगा ही नहीं, और ये भी डिसाइड करती है. दूसरी बात, अगर डेंसिटी इज रो, डेंसिटी मान लें अर्थ की सेम है हर जगह, तो हम मास को क्या लिख सकते हैं? मास वुड बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो मास कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी. एक काम करो, ये मास इसमें सब्स्टिट्यूट करो और गेट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. You can find gravity in terms of density of the earth, and that would be holding true for any planet also. So mass को हमने रिप्लेस कर दिया 4/3 πr³ इंटू रो से डिवाइड बाय r². ठीक है, r³ से r² कट जाएगा, तो ग्रेविटी आ गया 4/3 π g r रो. तो, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में ग्रेविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. अगर मास कांस्टेंट है तो विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r². क्वेश्चन लिखो एक. मास ऑफ अ प्लैनेट, mass of a planet is 6 times that of the earth. Mass of a planet is 6 times that of the earth, and its radius is 2 times that of the earth. Find acceleration due to gravity on the planet. कर लो.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो म्यूट हो गया था। तो मैंने जीपी बाई जी को डिवाइड कर दिया और फिर दोनों का रेशियो कर लिया। एम पी इक्वल टू 6 ME था, आर पी इक्वल टू 2 RE था। सो इट बिकेम 3/2, जीपी बिकेम 1.5 टाइम्स ऑफ जीई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ रिमेन्स द सेम, if radius of the earth remains the same and its density increases by 50%, if its density increases by 50%, what will be new acceleration, what will be new gravity, what will be new gravity? तो इस बार डेंसिटी दे रखा है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है। तो इस बार हम रेडियस दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे हमने वो यूज दिस फॉर्मूला। The gravity is 4/3 pi g r rho। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अब हो क्या रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है ना, कितना परसेंट? 50%। तो जी डैश ले लो, न्यू डेंसिटी। जी डैश वुड बी जी प्लस, नहीं डेंसिटी बढ़ रही है ना, रो डैश इज इक्वल टू रो ओरिजिनल डेंसिटी प्लस 50% ऑफ रो। तो पी डैश हो जाएगा 3/2 रो हो गया। सो द न्यू डेंसिटी इज दिस। बाकी सारा खेल सेम है, तो या तो उसको डिवाइड करके कर लेते हैं। जी डैश हो जाएगा 4/3 पाई जी आर, सेम है। न्यू डेंसिटी इज रो डैश। तो दोनों को या तो डिवाइड करके कर लो। जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो डैश बाय 4/3 पाई जी आर रो। ये सारा कट जाएगा।
रो डैश बाय रो हमें मालूम है। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। सपोज डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय, लिखो, इफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, if the density of the earth increases by 75%, if the density of the earth increases by 75% and radius decreases by, and the radius decreases by 30%, radius decreases by 30%, what will be, what will be percentage change, what will be percentage change in the gravity? लिख लिया नंदिनी? थोड़ा बहुत लिख लिया, बीच में थोड़ा मिस हो गया। गुस्सा कर रही हो ना तुम? क्या चीज सर? अपनी सिस्टर पे गुस्सा कर रही हो? नहीं सर, मम्मी थी अंदर। कौन था? मम्मी थी अंदर। अच्छा अच्छा, ओके। लिखो, इफ, क्या लिखवाया था मैंने? इफ द, क्या, इफ द डेंसिटी इंक्रीज बाय 70%, 75%, if the density increases by 75% and the radius decreases by 30%, what is the percentage change in the gravity? What is the percentage change in the gravity? देखो, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमेशा होता है, एनी फॉर दैट मैटर एनीथिंग, percentage change is always final quantity by initial quantity minus 1 into 100. ये होता है any physical quantity, if you want to find percentage change, final by initial minus 1 into 100. तो फाइनल ग्रेविटी निकालो, इनिशियल ग्रेविटी निकालो, दोनों को डिवाइड करो, फिर -1 into 100 करना है, कर लो। इस बार रेडियस भी चेंज हो रहा है, ग्रेविटी डेंसिटी एंड द रेडियस बोथ आर चेंजिंग। डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है बाय 75%, रेडियस इज डिक्रीजिंग बाय कितना, 30% ना? करो, फाइंड न्यू डेंसिटी, फाइंड न्यू रेडियस, substitute the formula and solve. न्यू ग्रेविटी को मैंने जी डैश ले लिया है, 22.5। अगर हम रो को 75% से इंक्रीज कर रहे हैं तो नया रो आ जाएगा, ठीक है, रो प्लस 75/100 इंटू रो, तो रो डैश कितना हो गया? हम्म, 7/4। फिर रेडियस डिक्रीज हो रहा है, दैट इज आर डैश, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, आर माइनस आर इंटू 30/100, ये कट गया, तो जाएगा 7r/, देन यू कैन फाइंड परसेंटेज चेंज। कैसे आएगा? फाइनल ग्रेविटी कितना होगा, जी डैश,
इनिशियल है जी, -1 × 100, ये आ गया। अब जी डैश कैसे करोगे? 4/3 पाई जी आर डैश रो डैश डिवाइड बाय 4/3 पाई जी आर रो, -1 × 100, राइट। देखो ये सारा कैंसिल हो गया। दिस यू ऑलरेडी नो, सब्स्टिट्यूट कर दो अब। आर डैश बाय आर कितना है? ये आर डैश बाय आर, इट इज 7/10। Then you have rho dash by rho. That is how much? So it is 900/40। वही परसेंटेज में आएगा बिकॉज हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 90/4। तो 22.5 पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है ये। इट इज 22.5% इंक्रीज। अगर बाई चांस ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्लासेस शुरू हो गई तुम्हारी? अच्छा। एंड श्योर है तुम्हारी छुट्टी चल रही है अभी? राइट, नेक्स्ट, वेरिएशन इन ग्रेविटी। Acceleration due to gravity is not a constant. Quantity changes due to various factors. Variation in G। सबसे पहला है वेरिएशन जी बिकॉज ऑफ ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा क्यों होता है? अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, इट्स रेडियस इज मोर एट इक्वेटर compared to the pole. Radius of the earth is more at equator than the radius of the poles. तो अब ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटी एट पोल विल बी gm/rp²। ग्रेविटी एट इक्वेटर वुड बी gm/re²। तो आर तो बड़ा है, तो जब आर बड़ा हो तो ग्रेविटी एट द इक्वेटर वुड बी लेस। ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ gravity at the pole is more than the gravity at the equator, or you can say gravity at the equator is less than the gravity at the poles. But this is because of shape of the earth, equator, and this is pole.
जिया लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट इज वेरिएशन ड्यू टू हाइट, altitude. Variation in gravity due to height. Suppose this is the Earth. Radius of Earth is r. On the surface of Earth, gravity मान लो हमने g ले ली, ठीक है? At a, and as you go up at a height h, above the surface of Earth, this point is b, and this is the mass. Diagram बनाओ. Gravity, variation gravity due to the height, altitude. नंदिनी डायग्राम बन गया? तो बना रही हूँ। ये वैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था अलग से एक्स्ट्रा क्लास में, याद आ रहा है? हाँ सर। इसमें न्यूमेरिकल आया था? यस सर, पहला क्वेश्चन ही मतलब एमसीक्यू के बाद में मेडिकल ही था। अच्छा, तो जब मास यहाँ रखा हुआ है, तो सपोज द फोर्स इज एफ, एंड इट विल बी हाउ मच? जी एम एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है मास एंड सेंटर ऑफ अर्थ में? आर प्लस एच. So the force between the mass and the earth would be this much. G mm by r plus h का whole square. H is the altitude or the height above the surface of the earth. लिख लो उतना. And if you divide force by mass, it will give you acceleration at that particular point. So F by m is the g dash or gh. Gravity at that height h. H is a subscript over here. gh is the gravity at altitude h. ये आ गया. F by m, force by mass, would be acceleration due to gravity. अब क्या होगा? You can take r common in the denominator. 1 plus h by r ऐसे कर लो का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा. Or you can say that gh is equal to gm by r square into 1 plus h by r the whole square. But what is gm by r square? Gia, what is gm by r square? Gravity on the surface of Earth. gm by r square is gravity on the surface of Earth. इसका मतलब gh would be gravity on the surface of Earth divided by 1 plus h by r का whole square. So this is the formula to find acceleration due to gravity at a height h. इसका डेरिवेशन 3 मार्क का आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. क्या हो, तुम्हें नींद आ रही है? And this formula will hold true in all cases, irrespective of the value of h.
इसमें एक अप्रोक्सीमेशन भी है, वो भी कर लेते हैं। मान लो हाइट इज मच लेस कंपेयर टू आर, मतलब h बाई आर विल बी मच लेस देन कंपेयर टू 1, राइट? सो तुम लोगों ने मैथ्स में बायनोमियल में पढ़ा होगा कि इफ x इज एक्सट्रीमली स्मॉल, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ऑलवेज 1 प्लस एन एक्स। जैसे कि सपोज मान लो 1.01 टू द पावर 5 फाइंड करना है, तो दिस यू कैन राइट एज 1 प्लस 0.01 टू द पावर 5, एंड दिस वुड बी 1 प्लस एन एक्स। एक्स कितना? 0.01, एन इज 5, so it'll be 1.05. So this is binomial approximation. We can use binomial approximation here also. h by r is much less than 1. उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। दिस इज 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2। अब h बाई आर तो बहुत छोटा है, तो दिस इंडेक्स विल गेट मल्टीप्लाई ओवर हियर। तो जी एच वुड बी g इंटू 1 माइनस 2h by r. This is highly approximate formula. This you can use only and only if h is much less compared to capital R. Capital R is 6400 kilometer. तो मान लो height is about 50 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer, then can you use this formula. But ये इस फॉर्मूले से हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, चाहे h कंपेरेबल टू r हो या ना हो। नंदनी क्वेश्चन पेपर शेयर करना अपना, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी। और मैथ्स का मेरे पास है नहीं, फिजिक्स का भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, किसी से पूछ लेना। उसको करो तो सही मैथ्स का भी, अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया रीटेस्ट नहीं होगा उसका फिर अब। सर इसको हमारे स्कूल में नहीं देते रीटेस्ट। तो फिर मार्क्स का क्या होगा? तो वो कर देंगे एवरेज। आज का एक बार देखो जो भी सारा किया है ग्रेविटी में। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? शौर्य तुमने पुराने वीडियो देखने शुरू किए नहीं किए अभी? हाँ उसको देखो, वो कई, मेरे ख्याल से रोटेशन की तो 8 6 7 क्लासेस हैं, एंड इवन यू मिस वर्क बाय एनर्जी आल्सो 1 or 2 क्लासेस। ठीक। कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये रिवाइज करना, और देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। असाइनमेंट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ इस पे ना, तो इनको दोबारा से करोगे, प्लस अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस ऑल्सो। अगला टेस्ट तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का, सम पीपल हैव नॉट गिवन वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट, तुमने नहीं दिया था ना? नहीं, कोई बात नहीं। जी यू ऑल्सो डिडंट राइट द वर्क पावर एनर्जी टेस्ट। नंदिनी यू ऑल्सो डिडंट राइट द टेस्ट वर्क पावर एनर्जी, याद आ रहा है? मुझे पूरा करना है, वो थोड़ा हुआ। ठीक है, रिवाइज करो फिर आई शेयर इट। एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. बाय।